ஜெயந்தி ஜி வணக்கம். மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆத்தூர் ஒன்றியம் என் பஞ்சம்பட்டியிலிருந்து ஜெயந்தி. நான் 2006 இண்டசைவா பெண்கள் சுய உதவிக்குழுவில் ஒரு மெம்பராக சேர்ந்தேன். என்னோட உறுப்பினர்களையும் வாழ்வாதாரத்தில் முன்னேற்றணுங்கிறதுக்காக பேங்க்ல 6 முறை கடன் வாங்கி ஆடு வளர்த்தல் மாடு வளர்த்தல் போன்ற தொழில்களில் அவங்கள ஈடுபடுத்தி எங்களோட வருமானத்தை நாங்கள் பெருக்கிக்கிட்டோம். 2010 இந்த பிளாஸ்டிक रीसाइक्लिंग यूनिट நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இதுல நான் மேனேஜரா वर्क பண்றேன். माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जयंती दिंडीगल तमिलनाडु दिंडीगल पंचमबटी से हूँ। मैं सन 2006 में इंडसइवा नामक समूह से जुड़ी। इस समूह से मैं और मेरे जैसे अन्य सदस्य बैंक से 6 बार लोन लेके पशुपालन मुर्गी पालन जैसे अन्य आजीविकाएं करके हमारा आर्थिक अवस्था और आय को बढ़ाए हैं। सन 2010 में हमने प्लास्टिक पुनरुपयोग इकाई का स्थापन किया। इस इकाई का मैं मैनेजर हूँ। எங்களோட கிராமமும் எங்களோட சுற்றுப்புறத்தில் இருக்க கிராமங்கள்லயா பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்னால பார்த்தீங்கன்னா நீர்நிலையும் சுற்றுப்புறம் மாசுபட்டு காணப்பட்டுச்சு. இதை நாங்கள் SRLM உதவியோட இந்த யூனிட்டை 2010 நாங்கள் ஒரு 36 பெண்களை கொண்டு அமைச்சிருக்கோம். இதற்கு முதலீடாக பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஷட்டரிங் மிஷின், ஒரு கிளீனிங் மிஷின், ஒரு மெல்டிங் மிஷின், 3 மிஷினை 5 லட்ச ரூபாய் முதலீட்டில் நாங்கள் வாங்கி இந்த யூனிட்டை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்லேருந்து இதை தரம் பிரித்து இதை ஒரு மதிப்பு கூட்டும் பொருளாக அரைச்சி நாங்கள் தார் ரோட்டு பயன்பாட்டிற்காக நாங்கள் கொடுத்துட்டு வரோம். கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் நாங்கள் 32 டன்னு பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை நாங்கள் சேகரித்து இதை அரைச்சு DRDA உதவியோட பிளாஸ்டிக் தார் சாலைகளுக்கு நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். सर 2010 में हमने ये प्लास्टिक रिसाइकिल यूनिट का स्थापना की। हमारे गांव प्लास्टिक वातावरण समस्या के लिए हानिकारक है। हमारे गांव और आसपास के जल इकाई का भी प्रदूषित करने लगा। हमें आजीविका मिशन ने सुझाव दी कि हम इस प्लास्टिक के कचरे से कुछ मूल्यवर्धन कर सके। उनके सुझाव के अनुसार हमने 5 लाख रुपये से इस यूनिट को स्टार्ट किए हैं। हमें प्लास्टिक कटाई का मिशन आजीविका मिशन के अनुदान थी। हमारे पास मेल्टिंग मिशन और ग्रेडिंग मिशन ये सब हमारे पास है। हम कुल 36 सदस्य इस यूनिट में काम कर रहे हैं। पिछले 12 महीनों में हम लोगों ने 32 टन की प्लास्टिक की कटाई की और इससे हमें 10,80,000 की कारोबारी हुई। अब तक हम जितने भी प्लास्टिक कटाई की है वो सब DRD को भेजे हैं जो सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। 1 கிலோ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை கிலோ நாங்கள் 5 ரூபான்னு எடுக்கிறோம். அதை தரம் பிரித்து சுத்தம் பண்ணி 30 ரூபாய்க்கு நாங்கள் தார் ரோடு பயன்பாட்டிற்காக கொடுத்துட்டு வர்றோம். கடந்த நாங்கள் யூனிட் ஆரம்பிச்சிலேருந்து இது வரைக்கும் 102 டன்னு பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை நாங்கள் சேகரித்து 30 லட்சம் ரூபாய்க்கு நாங்கள் உற்பத்தி செஞ்சு விற்பனை செஞ்சுருக்கோம். இதனால எங்களுடைய யூனிட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நிரந்தர வேலை வாய்ப்பும் வருமானமும் கிடைக்கிறதுனால எங்களுடைய வாழ்வாதாரமும் எங்களுடைய கிராமமும் சுகாதாரம் அடைஞ்சிருக்கு. எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த பிரதமர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய தமிழக அரசிற்கும் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். सर हम ये प्लास्टिक को 1 किलो 5 रुपये के भाव में हम खरीदते हैं और इसका पूरा प्रोसेसिंग के लिए 15 रुपया खर्चा होता है। हम 1 किलो 30 रुपये के भाव में बेचते हैं। अब तक की हमारी जितनी भी प्लास्टिक हम लोगों ने कटाई की है वो कुल 102 टन है। इससे हमें 30 लाख की कारोबारी हुई। हमारी इस प्लास्टिक से 200 किलोमीटर की रोड बनी है। इसके द्वारा हमारे सदस्यों को प्रतिदिन 400 के हिसाब में महीने में 8,000 मिल रही है। हमें इस अवसर प्रदान करने के लिए आपको और हमारी तमिलनाडु राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपकी सभी सखियों को, सभी आपकी साथी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ, आप तमिल में बोलिए, आप तमिल में उनको समझाइए, माइक पर ही बोलिए तमिल में ताकि बाकी सब बहनें भी सुने। प्रधानमंत्री சார் உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்றாங்க. இந்த வாய்ப்பளித்த பிரதமர் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். सर बोलिए सर।
आप हिंदी में बताइए क्या बताया। नहीं, ये आपका फिर से धन्यवाद कर रही हैं। अच्छा, देखिए, एक तो आपने इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार के सखी मंडल के लोग कर सकते हैं। आपने सब कूड़े कचरे से प्लास्टिक इकट्ठा किया, प्रोसेस किया, 200 किलोमीटर तक के रोड बनाए और 30 लाख रुपए का कारोबार किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है। पर्यावरण और प्रगति को एक साथ लेकर कैसे चला जा सकता है, इसका आपने बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट का विचार ये आपके मन में कैसे आया? यानी थोड़ा ये टेक्निकल काम है, इंडस्ट्री जैसा है, तो ये कैसे आया आपके मन में? எங்களோட கிராமத்துல தூய்மை பாரத இயக்கத்தின் மூலம் நாங்க எல்லா வீடுகளுக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு வந்து கழிவறை கட்டி கொடுக்கும் பணியை தான் முதல்ல நாங்க ஆரம்பிச்சு தூய்மை கிராம விருது எங்க பஞ்சாயத்துல நாங்க வாங்கினோம். அதோட தாக்கம் தான் எங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வந்து எங்க பார்த்தாலும் இருக்கிறது வந்து நீர்நிலையும் விவசாயத்தையும் பாதிப்பதனால இந்த பிளாஸ்டிक கழிவுகளை மறுசுழற்சிக்கு கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு நோக்கத்துல தான் நாங்க இந்த யூனிட்டையே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். सर, हमें ये सुझाव आजीविका मिशन ने दिए थे। उसकी सुझाव से ही हम लोगों ने, उनकी ट्रेनिंग से ही हम लोगों ने ये यूनिट बनाया। अब तो भारत सरकार ने भी नियम बनाया है कि रास्ते में बनाने में प्लास्टिक का उपयोग करना, और उसके कारण बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो सभी बहनें अगर इस काम को करेगी तो बहुत फायदा होने वाला है। स्वयं सहायता समूह से इतनी सारी बहनें आपके यहाँ काम कर रही है, क्या कभी उनके साथ बातचीत होती है? उनके जीवन में क्या बदलाव आया, उनके जीवन में क्या संतोष आया? रोड तो बन गए, गंदगी भी दूर हुई, प्लास्टिक भी गया, लेकिन इनकी जिंदगी में क्या रोशनी आई, उसकी कभी बातें होती हैं? आपकी बहनों का कोई उदाहरण बता सकती हो आप मुझे? பிளாஸ்டிக் இதுல சேர்ந்தனால அவங்க வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்கு? உங்களோட சேர்ந்தவங்களோட வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்கு? எங்களோட சேர்ந்தவங்க வந்து ஆரம்பத்துல வந்து கூலி வேலைக்கு போய்கிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு வந்து இந்த யூனிட்ல வந்து நாங்க ஒரு தொழிலாளியாவும் இருக்கோம். இந்த யூனிட்டுக்கு நாங்க முதலாளியாவும் ஆயிருக்கோம். எங்களுக்கு பெண்களாகி எங்களுக்கு கையில வருமானம் இருக்கிறதுனால எங்களோட குழந்தைகளோட படிப்பு செலவு, பொருளாதார முன்னேற்றம் எல்லாத்தையும் நாங்களே பாத்துக்கிறதுனால எங்களோட வாழ்வாதாரம் பெரிய இருக்கு. सर, इससे हम पहले तो हमारे कुछ काम धंधा कुछ नहीं था, अब तो हम महीने में 8,000 कमाते हैं। इससे हमारा घरेलू खर्चा सब होता है और हमारा बच्चे लोगों का फीस भी हम भर सकते हैं। पहले तो हम किसी पर निर्भर थे, अब तो हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। हम जो हम अब जयंती जी, आपका स्वयं सहायता समूह और उसके सदस्य पर्यावरण की बहुत बड़ी रक्षा कर रहे हैं, और मुझे बताया गया है कि आपके प्रोसेस किए गए प्लास्टिक से करीब, जैसे आप बता रही थी कि 200 किलोमीटर की सड़क बनी है। ये छोटी बात नहीं है। अगर ऐसे ही हर गांव ठान ले तो हम प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को बहुत कम कर पाएंगे। मेरी तरफ से जयंती जी, आपको, आपकी सभी साथी बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वणक्कम।